These stupid jokers, they want to compete with India, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have our political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understand. पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत के कई डेलीगेशन विदेश दौरे पर हैं। पक्ष विपक्ष के नेताओं की इन डेलीगेशन में सबसे ज्यादा चर्चा में ओवैसी है। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने में ओवैसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मुस्लिम देशों में जाकर जो तेवर अपनाए उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। लेकिन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के बारे में कौन से देश में क्या कहा है, उनके वो कौन से 5 बयान हैं जिन्होंने उन्हें पाकिस्तान की पोल खोल करने वाला भारत का हीरो बना दिया है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले ओवैसी का सबसे चर्चित बयान आपको सुनवाते हैं, जहां वो पाकिस्तान आर्मी चीफ को ट्रोल कर रहे हैं। यहां ओवैसी ने तंज कसते हुए ये तक कह डाला था कि ये बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहते हैं। I am telling you something fact about the fact. I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying. दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपनी शेखी वगाड़ते हुए एक पेंटिंग गिफ्ट की थी। पूरी दुनिया में अब इससे पाकिस्तान का मजाक बन गया है। हुआ यूं कि आसिम मुनीर ने जो पेंटिंग शहबाज को गिफ्ट की वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के हमले का नहीं, बल्कि चीन की सेना की एक आर्मी एक्सरसाइज की है। कुवैत में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ओवैसी ने यह बयान दिया था। अब आते हैं दूसरे बयान पर, जो हाल ही का है। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने ज़कीउर रहमान लखवी नाम के एक आतंकवादी का जिक्र किया और कहा कि दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद के आरोप का सामना कर रहे आतंकवादी को जेल से बाहर आने की परमिशन नहीं देगा, लेकिन वो जेल में बैठे बैठे ही एक बेटे का पिता बन गया। And in fact, there was this one terrorist called Zakir Rahman Lakhvi. No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son by sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. There was one mastermind of 2611 called Sajid Mir. He was the main brain behind of telling David Headley to change his name from Dawood to David Headley. Pakistan was denying the Indian investigators that no, Sajid Mir is dead. There was an important meeting in Germany. Pakistan came forward and said, yes, Sajid Mir is alive. So dead people become alive in Pakistan only because of FATF grey list. So if we bring back Pakistan in FATF grey list, we would request you, your leadership, to please help us in saving lives, humanity, because if this terrorism, it increases in the form of ideology, in the form of finance, which they get from illegal sources, this is a grave threat to humanity. And Pakistan believes in destabilizing in India. You see, it's not only a question of South Asia. When we are the fourth largest economy, what will happen? Do you want all these carnage to spread to different parts of South Asia? No.
So it is in the interest of world peace and to control Pakistan, which is the main sponsor of terrorism, it has to be brought back in the FATF grey list. And also, Algeria is a contributor to UN counter-terrorism initiatives. And it is promoting guidelines on terror finance. So we hope that we have a common enemy in form of terrorism, in form of ideology. And that is why our government has sent us to your great nation to please put forward these viewpoints. And I'm sure that, when the time comes, your leadership would rise to the occasion and bring back Pakistan and FATF. And also you have seen that India has been a great supporter of Algeria, and we continue to support Algeria. Bilateral trade is good. But the important point which all of us have come, despite being from different political backgrounds, despite being completely opposed to each other in India, we have come here to put forward our viewpoint so that the Algerian political leadership would appreciate, understand and help India in bringing Pakistan back in FATF grey list. ये बयान ओवैसी ने तब दिया जब वो अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। यहाँ ओवैसी ने कड़े लहजे में कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने की इस्लामाबाद की रणनीति दक्षिण एशिया में अस्थिरता को बढ़ावा देती है। ओवैसी बहरीन में भी बैठक के दौरान भारत की ओर से पक्ष रख रहे थे। उस दौरान भी उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब किया। उन्होंने मुंबई ब्लास्ट, ट्रेन धमाकों, जम्मू कश्मीर विधानसभा के सामने हुए आत्मघाती हमले, पुलवामा और पठानकोट हमलों का जिक्र करते हुए सबूत दिए कि इन सभी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका थी। तो सुबह में हम बहरीन के डिप्टी पीएम है शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, फिर उसके बाद जो शूरा काउंसिल के चेयरमैन हैं हिज एक्सेलेंसी अली बिन सालेह अल सालेह, और फिर जो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर हैं हिज एक्सेलेंसी अब्दुल नबी सलमान अहमद साहब के साथ, और काउंसिल और रिप्रेजेंटेटिव्स का हमारी मीटिंग हुई। बहुत अच्छी मीटिंग हुई। उसमें तमाम ग्रुप ने जो जय पांडा उसकी क़यादत कर रहे हैं, हमने भारत का पक्ष रखा। हमने उनको बताया कि कितने बरसों से भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो उनके एडेड प्रमोटेड ट्रेन टेररिस्ट आकर भारत में आतंक मचा रहे हैं और कितने लोगों की जाने गई। हमने पूरे डेटा उनको दिया कि चाहे वो मुंबई का ब्लास्ट हो, ट्रेन ब्लास्ट हो, जम्मू कश्मीर के असम्बली के सामने जो सुसाइड बॉम्बर का ब्लास्ट हो, फिर पुलवामा हुआ, उससे पहले पठानकोट, फिर पिछले साल रेसी में एक बस के ऊपर गोलियां चलाई गईं। तो हमने बताया कि ये पूरा स्किट जिसमें ट्रेडमार्क्स पाकिस्तान के हैं। और एक बात हमने बताई कि जो टीआरएफ जो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 1262 जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो सैंक्शन कमेटी के हमने दिसंबर 2023 में कह दिया था कि टीआरएफ पे आप सैंक्शन लगाइए, ये यहाँ पर भारत में गड़बड़ कर सकता है। तो टीआरएफ के बारे में अभी से हमने बोला, दिसंबर 2023 से सरकार ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को 1262 को सैंक्शन को बता दिया। तो ये है। और तीसरी बात ये है कि बार बार ये जो पाकिस्तान जो अपने आप को बड़ा ही विक्टिम नहीं है, पाकिस्तान एग्रेसर है। और हमने 15 अप्रैल को जो आसिम मुनीर की स्पीच हुई, जिन्होंने कश्मीर के बारे में जो बात कही, उसके बारे में हमने बताया। और फिर देखिए, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इससे भी साबित होता है कि जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 मरतबा इंटरनेट के ऊपर उसको कबूल किया, और भारत सरकार ने, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने, साइबर के एक्सपर्ट्स ने मालूम किया, तो वो तो पाकिस्तान के मिलिट्री कैंटोनमेंट के करीब से उन्होंने उसको इंटरनेट पे डाला। वो तो फुटप्रिंट्स निकल नहीं सकते। और तीसरे, हमारी देश की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए ने केस रजिस्टर किया है, तो इसमें पूरा इसका इन्वॉल्वमेंट है। और फिर भारत तरफ से जो एक्शन लिया गया, तो पहले 9 मुकामात को हमने निशाना बनाया जो यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस है, और पाकिस्तान ने बेहूदगी की। तो फिर 9 और 10 को वो एयर बेसिस पर
उनको सबक सिखाया गया। तो ऑल इन ऑल हम बता रहे हैं कि भारत तो चाहता ही नहीं है, मगर कंटिन्यूसली एक पड़ोसी मुल्क भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाह रहा है, भारत में हिंदू मुस्लिम नफ़रतों को बढ़ाना चाह रहा है, और उन्हीं के पास से ये टेररिस्ट आते हैं, ये सब तमाशे करते हैं। तो बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई और सब ने इस पॉइंट को उनके सामने रखा और उन्होंने भी सुना है। हम उनको ये कह रहे हैं कि आप भारत को आप जो देख रहे हैं, और भारत यहाँ पर बहरीन में तो 1962 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गल्फ रुपी इस्तेमाल होता था, और भारत पहला देश है जो एंटी कॉलोनियल स्टैंस लिया था यूनाइटेड नेशन में, और उसकी वजह से बहरीन को यहाँ पर अंग्रेज़ों को छोड़ के जाना पड़ा। और हमने उनको बहरीन की हुकूमत को याद भी दिलाया कि 2018 और 22 में आप ही के एक बहरीनी डिप्लोमेट की वजह से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाला गया, और एक आतंकवादी जो यहाँ पर छुपा हुआ था उसको 2015-16 में उन्होंने भारत सरकार के हवाले भी किया। तो हम उनसे कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में FATF के मेंबर हैं और वो पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लेकर आए, क्योंकि जो फंड्स आ रहे हैं उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और 2026-27 में बहरीन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी होने जा रहा है, तो इस एतबार से भी ये बहुत अच्छा रहा। बहरीन की यात्रा पर ओवैसी ने एक और बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि आतंकवादियों ने लोगों की हत्या को उचित ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने पहलगाम हमले पर यहाँ पर बात की। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it said killing of one innocent person is like killing of whole humankind. This one must remember, and they've constantly used this. जबकि ओवैसी ने दुश्मन देश के लिए एक साफ संदेश भी दिया। अपनी इस यात्रा पर ओवैसी ने कहा कि देश में हमारे बीच में भले ही राजनीतिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन देश की बात आती है तो हम सब एक हैं। Now I think so there is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have our political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. And I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan in grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का रुख बताने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक डेलीगेशन सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा पर है। इसमें बैजंत पांडा के अलावा निशिकांत दुबे, फागनोन कोनियाक, रेखा शर्मा और ओवैसी के साथ साथ मनोनीत सांसद सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।